yesterday we have seen the part of the instrumentation amplifier, that is differential amplifier, using one op amp and two op amp. Now in the one op amp, when two signal sources were applied, so it was acting as if the differential input. So one input to the inverting terminal and another input to the non-inverting terminal. So difference of these two signals were being amplified at the output with certain gain. So we have derived here that the gain is Rf upon R1. So as if we have shown that this is output voltage is proportional to, we can say, the difference of these two signals. When we analyze this one like this, we could derive this one minus Rf upon R1 Vx minus Vy. So it is as if the difference of these two signals is being amplified. Now what was the problem with the differential amplifier using one op amp? Can anybody tell me what problem I have raised? What is the drawback associated with this? Its input Its input impedance, what? Actually, that thing is not clear. What I think I just told you that the RIF we are getting as looking through the non-inverting input, or we can say RIF Y is like R2 plus R3, and through the inverting terminal like RIF X, it is R1. So what we are getting eventually, that both the input impedance is not same. So it is a mismatch in input impedance, that looking through the non-inverting terminal and looking through the inverting terminal, they are not getting same. So we have improved this differential amplifier. We have gone for this two op amp differential amplifier. Here what we have achieved, this Vx input is connected to non-inverting. Similarly, this Vy is connected to non-inverting. But in order to get the difference of these two signals, we have employed one more op amp, so that the amplified version of this will again be connected to inverting terminal, so that difference of these two signals will be possible. So that we have analyzed. So equivalently, this circuit looks like this one. So that we have analyzed, and what we got, equally it is giving the difference of this signal Vx minus Vy is being amplified with a gain of 1 plus Rf upon R1. But again, the problem is not solved. Although we see that both the terminals are connected to the non-inverting terminal. So in order that, we were assuming that I am getting RIF is equal to Ri plus 1 plus A beta times. But here the beta changes with both the op amp. In one case, it is Rf upon R1 plus Rf plus R1. In another case, it is R1 upon R1 plus Rf. So either you need to take Rf equal to R1, or you will have a problem that again the input impedances are not same. So that's why now we are going for differential amplifier using 3 op amp. Okay. So let us see the differential amplifier using 3 op amp. Mostly you will refer, I suppose, what I can say, Gaikwad book. So for that case, let us name this, or in order to name this in terms of the earlier version, यहाँ पे ऐसा समझ लो कि Vx कनेक्टेड है, ये ऐसा V1 भी लिखा तो इसका मतलब ये ऐसा सोर्स लगा है, तो मैं इस तरीके से भी दिखा सकते हैं और अलग तरीके से इस टाइप से भी दिखा सकते हैं, और यहाँ समझ लो कि ये नहीं होके Vy है। ये लैंग्वेज में हम अभी काम कर रहे हैं इसलिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। मान के चल लो दिस इज RF है, एंड वी नो दिस R3 we will keep equals to RF, okay, and let us say this is my R1 और ये भी R1. नॉर्मली ये लेफ्ट हैंड साइड को भूल जाओ, तो ये याद करो, ये रजिस्टर, ये ऑप एम्प, सॉरी, ये रजिस्टर और रजिस्टर, ये दोनों रजिस्टर हम सेम लेते, फीडबैक और R3, और ये दोनों रजिस्टर इक्वल लेते हैं, तो इट एक्ट एज अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूजिंग वन ऑप एम्प। हम लोग कर चुके हैं ना, इसके पहले कोई फर्क तो नहीं है, ये हम लोग कर चुके हैं, ये वाला एनालाइज कर चुके हैं। अब ये जो इनपुट साइड में है, ये किस तरीके से कनेक्टेड है, तो मैं इसको नाम थोड़ा अलग दे देता हूँ, ये R4 लिख देता हूँ, ये भी सेम ही है R4, और इसको देखो बहुत जगह RG लिखा रहता है, R गेन लिखा रहता है, या फिर कोई नंबर दिया रहता है R5, कुछ भी ले लो आपको, आप देखेंगे दोनों वर्जन है, RG भी लिखा हुआ रहता है, और नॉर्मली इसको वेरिएबल रखते हैं, ये जब
ये बताया भी नहीं होगा तो इस तरीके से वेरिएबल रखते हैं। क्या यहाँ तक के कोई प्रॉब्लम है क्या ये समझने में? अब जरा एनालाइज करते हैं इसको। आप मुझे बताओ इनपुट कहाँ पे लगा हुआ है, किस ऑप एम्प में लगा हुआ है? इसको नाम दे देता हूँ मैं आपके समझने के हिसाब से। लेट्स से आपके ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है, ठीक है। अब बताओ इनपुट कहाँ पे कनेक्टेड है? A1 और A2 है। हाँ, A1 और A2 को उसके किस टर्मिनल पे है? नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग। बोथ बोथ इस केस में आप देख रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है। और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल स्पेसिफिकली हमने इनपुट साइड में क्यों लिया? तो हमको मालूम है कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हम लोग एज अ बफर यूज कर सकते हैं, जिसका कि इनपुट इंपीडेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। बफर मीन्स यूनिटी गेन एम्पलीफायर बोलो या वोल्टेज फॉलोअर बोलो, जिसका कि इनपुट इंपीडेंस बहुत हाई होता है। सो दैट क्वालिटीज वी आर गेटिंग। सो नॉन इन्वर्टिंग टाइप में रखा है। और यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे या फिर यहाँ से ये जो पार्ट है इसका राइट हैंड साइड, इट इज वन मोर कॉम्बिनेशन ऑफ यू कैन से डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जो हम लोगों ने पहले ही एनालाइज किया था कि नहीं? ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूजिंग वन ऑप एम्प किया हुआ था। अगर मैं इसको नाम दे दूं यहाँ पे, सपोज यहाँ एक आउटपुट मुझे मिल रहा है VA और इसको नाम देता हूँ VB। तो जैसे VX और VY में हम लोग जब डिफरेंस रहता है तो VXY बोलते हैं, VX माइनस VY। इसी तरीके से VA और VB में हम ये कह सकते हैं ना, VAB, VA माइनस VB। देखो आप कभी भी जब VBE लिखते हैं, बेस टू इमीटर वोल्टेज, इसका मीनिंग होता है बेस पोटेंशियल माइनस इमीटर पोटेंशियल। ऐसी लैंग्वेज क्यों है, आपके समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसी लैंग्वेज इसलिए है कि ये जो बेस का पोटेंशियल है ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और ये इमीटर का है ये भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी ये हो जाता है VB, ये ग्राउंड तक का वोल्टेज, माइनस VE, ये ग्राउंड तक का वोल्टेज। इसलिए लैंग्वेज ऐसी है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये पोटेंशियल है एट पॉइंट B with respect to some reference. It is potential of E with respect to certain reference point, and difference of these two signal is VB. ये एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। इस तरीके से समझने की कोशिश करो। तो अब इसको एनालाइज करते हैं हम। अब अगर राइट हैंड साइड में मैं पहले ही अगर लिख दूं या आपको आसान जाए, तो हमको जो निकालना है आउटपुट, कैसे निकालेंगे? क्या आपको लगता है कि आउटपुट निकालने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? जरा इस राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करो। ये पहले आप स्टडी कर चुके हैं क्या? देखो जरा इस तरीके का। अगर आप राइट हैंड साइड को देखते हैं, मैं लगे तो यार फिर से बनाता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से बना हुआ है। ये एक रजिस्टर है, यहाँ एक रजिस्टर है, ये इन्वर्टिंग को है, ये नॉन इन्वर्टिंग को है, यहाँ एक रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर ग्राउंडेड है, ये VO है। और अगर यहाँ पे ये दोनों रजिस्टर R3 इक्वल टू RF सेम रहता है, साथ में R1 और ये भी R1 यानी सेम रहता है, तो यहाँ जो भी वोल्टेज होगा, सपोज VA है, यहाँ VB है, तो हमको मालूम है इसका, हमको माइनस RF अपॉन R1 VA माइनस VB आता है। ये आपको याद आ रहा है क्या? मैंने माइनस RF अपॉन R1 VXY लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप? सेम है ना ये कि नहीं है? इज इट सिमिलर? यस सर। यस। सो सेम थिंग, इसका हम धीरे धीरे देखो, कोई भी बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, उसको बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर। सो कोई भी प्रॉब्लम जब बड़ा होता है तो उसको हल्के हल्के स्मॉल चंक्स में हम डिवाइड करते हैं एंड देन वी कॉन्कर। सो डिवाइड एंड कॉन्कर उसको बोलो, या जिसको हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट ब्लॉक्स में करो। तो ये सॉफ्टवेयर में रहो या हार्डवेयर में, सेम स्ट्रेटेजी हमेशा काम आती है। If you have a complex problem, divide it into simple parts and analyze a individual parts, so you will get the feel. Okay, so that is what we have done. That this right hand side we are already knowing. Now our job is to get the value of VA and VB. Now how should we get the VA and VB? जरा इसके बारे में कोई रोशनी डालेगा? How should we get the VA and VB? हमको VX और VY का आउटपुट निकालना पड़ेगा, बराबर है ना? अब हमारा प्रॉब्लम क्या जा रहा है? इनपुट एक है कि दो है? मल्टीपल इनपुट्स है। जब मोर देन वन सोर्सेस रहते हैं तो हम कौन सा थ्योरम लगाते हैं? सुपरपोजिशन। बस, अब भूलना ही नहीं है, बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। अब लेकिन इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे दिखेगा ये सोचना है आपको। कैसे सोचना है? अब बाय सुपरपोजिशन थ्योरम हम बोल सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है VAB, ये हमको मिलेगा एक्चुअली VAB यानी VA माइनस VB। तो हम बोल सकते हैं कि ये आउटपुट कैसा है? एक्चुअली VAB मालूम है क्या? ये VA जो है आउटपुट,
ये है वीओ ड्यू टू एक्स, बराबर है क्या? देखो तो, या इस तरीके से भी न बोलते हुए, अगर आपको लगता है इस तरीके से न बोलते हुए भी अगर आपको जाना है, तो इसको थोड़ा एनालाइज हम अलग ढंग से करते हैं, ठीक है? इस ऑप एम्प को देखो, ये जो है दो ऑप एम्प है, यहाँ एक नहीं दो ऑप एम्प है। अब यहाँ पे एक सोर्स है वीएक्स, एक सोर्स है वीए, आउटपुट में लेकिन दो दो है, वीए भी है और वीबी भी है, बराबर है? तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगा रहे। अब मैं ऊपर वाले को एक्टिव रख रहा हूँ। ऊपर वाला इनपुट इन्वर्टिंग को दिया है कि नॉन इन्वर्टिंग को दिया है? दोनों इनपुट नॉन इन्वर्टिंग को ही दिए, बराबर है ना? ये दोनों इनपुट नॉन इन्वर्टिंग को ही दिए, और ऊपर वाला मैं एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो वीए है और रजिस्टर क्या है, यहाँ पे कितना रजिस्टर है? R4, ये R4 है, ठीक है? धीरे धीरे चल रहे हैं हम। हाँ, इसके बाद यहाँ कौन सा रजिस्टर लगा हुआ है बीच में? R5 या RG, ठीक है? तो अब बहुत कंफ्यूज ना करते हो। मैं, अगर आप ऑप-एम्प इसकी बुक लगा यूज करेंगे तो उसके हिसाब से मैं R5 लिख रहा हूँ, या RG लिखना आप। हाँ, R5 या RG लिखना, सिंपल में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये गेन, ये वाला जो है ना, ओवरऑल गेन डिसाइड करता है, इसलिए आरजी बोलते हैं। एक पेपर में आपके मैंने शायद जो दिया है ना, उसमें आरजी भी लिखा होगा। इसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? और R5 को हम मैं थोड़ा सा वेरिएबल दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद क्या है? एक और रजिस्टर लगा हुआ है, कौन सा? R4। जरा ऑब्जर्व करो इसको, इस तरीके से। ये R5 हो गया, अब ये R4 हो गया। ये किसको लगा है? ये VB को लगा है। इतना अगर आप लिख पाए तो आप सेम वे से एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे वोल्टेज VB कनेक्टेड है। एक्चुअली इस पार्ट को एनालाइज करते हैं। ये जो नेक्स्ट नीचे का पार्ट है, कौन सा? देखो ये इस पार्ट को, इसमें मैंने क्या किया? Vy इक्वल टू 0 कर दिया। इसके कारण ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे इनपुट क्या होगा वो देखने की जरूरत नहीं, पर किसी इफेक्ट के कारण यहाँ जो आउटपुट होगा, इतना मैं इक्विवेलेंटली ये सब मैंने रिड्यूस कर दिया। VB है वहां पे कोई तो भी, वो दिखा दिया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? अब आप देखो जरा, मैं जो डायग्राम बनाया उसको देखो। एक ऑप एम्प जिसको कि एक इनपुट Vx लगा हुआ है, और इधर VA आउटपुट हमको निकालना है, और नीचे में VB है। ये इक्विवेलेंट डायग्राम ये कब है? दैट वी आर ट्राइंग टू गेट VA व्हेन Vy इज 0। ये समझ में आ रहा है ना कि नहीं? ये समझ में आ रहा है क्या? फिर से बताओ क्या? हाँ सर बताइए। ये देखो, सर हाँ ये देखो, ये इनपुट साइड में क्या क्या है? Vx है और Vy है। हमको मालूम है जब सुपरपोजिशन लगाना है तो हम एक सोर्स एक्टिव रखेंगे और दूसरा सोर्स 0 करेंगे। अभी मैंने Vy 0 कर दिया, लेकिन ये 0 करने से इसका जो ये पार्ट है, ये पार्ट इनएक्टिव रहेगा, लोअर पार्ट। बट Vx के कारण यहाँ पे VA इनपुट, VA आउटपुट आएगा, लेकिन इसके बाकी रजिस्टर को कुछ तो लगा है। क्या लगा है? VB लगा हुआ है। बस इतना इक्विवेलेंट पार्ट आएगा। तो ये जो मैं नीचे बनाया ना, ये यहाँ पे दिखा रहा है। ये जो आउटपुट VB which is coming out of certain voltage, let's say you just forget, आपको आउटपुट मिल गया ना यहाँ VB, you are not worried। अब जब इसको एनालाइज करते हैं, ये वाले अभी जो मैंने डायग्राम बनाया, मतलब पहले सुपरपोजिशन थ्योरम लगाया तो मैं सिर्फ Vx और Vy को ही कंसीडर कर रहा था, जिसमें मैंने जब Vy को 0 कर दिया तो मुझे यहाँ Vx लिखा, लेकिन इक्विवेलेंट आउटपुट यहाँ पे है VB। अब फिर से सुपरपोजिशन लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसके इन्वर्टिंग को ये VB लगा हुआ है और यहाँ पे Vx लगा है। ये आपको दिखाने के लिए मैं जानबूझ के ये सुपरपोजिशन फिर से ये इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया, ठीक है? सो बाई अगेन SPT, अब क्या होगा? देयर विल बी आउटपुट, यू कैन से VA1 ड्यू टू X and another Vx, another due to VB, another due to VB। ये समझ में आया क्या? तो हम आगे बढ़ेंगे। यस चलेगा ना? देख रहे हैं आप, ये नॉन इन्वर्टिंग को Vx लगा है, इन्वर्टिंग को हम सोच ही नहीं रहे थे, लेकिन ये थ्रू कनेक्शन ये वाला आउटपुट इज एक्टिंग एज अ इनपुट टू दिस इन्वर्टिंग टर्मिनल। वी आर मेकिंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सिंपल जस्ट बाय डिवाइडिंग दिस, ये इक्विवेलेंट डायग्राम बनाने से। और बड़ा आसान हो गया, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या होगा VA की वैल्यू? एक है आउटपुट ड्यू टू X। जब आउटपुट ड्यू टू X करना है तो VB 0 कर देंगे ना हम लोग, कि नहीं? यस तो ये ग्राउंड होने से ये कैसा बनेगा? इन्वर्टिंग दिख रहा है कि नॉन इन्वर्टिंग दिख रहा है? नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग का गेन क्या होता है? 1 प्लस RF अपन R1। हाँ बराबर। अब Vx। RF में कितना है? R4। R4। और R1 में कितना है? 2 एडिशन में है, दिख रहा है आपको? ये दोनों सीरीज में आ गए, बराबर है कि नहीं? ये ग्राउंड हो गया, Yes। ये सीरीज R4 प्लस R5, और उसका इनपुट क्या है? Vx। बराबर। यहाँ तक के बिल्कुल हो गया ना आसानी से? VOX ये वाला पार्ट हो गया। यस सर। अब VB की तरफ जाते हैं, VOB की तरफ जाते हैं। अब Vx 0 हो गया,
अब ये जीरो कर दिया, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जीरो हो गया और इन्वर्टिंग में इनपुट दिया हुआ है, तो अब कौन से मोड में है ये? इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग। दिस इज नॉन इन्वर्टिंग और यहाँ पे इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग का गेन कितना होता है? माइनस आर एफ अपॉन R1। तो माइनस आर एफ अपॉन R1, तो कितना है बताओ? माइनस आर एफ की जगह R4, R1 की जगह R4 प्लस R5 इंटू VB। VB। यहाँ तक के समझ में आया क्या? बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया क्या? यस सर। बस अब इसको ही मैं थोड़ा सा, यस, इसको ही मैं सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है ना? तो ये R4 प्लस R5 ऊपर जाएगा, प्लस R4 के साथ में कितना हो जाएगा? 2R4 हो जाएगा कि नहीं? देखो ये R4 प्लस R5 ऊपर जाएगा, प्लस R4 इंटू VX माइनस R4 अपॉन 5 VB। यहाँ तक के हम लोग आ चुके हैं, ठीक है? यहाँ तक आ चुके हैं। ये इसको मैं एक नंबर दे देता हूँ ताकि आपको सहूलियत हुए समझने में। इसको एक नंबर दे दिया। अब सुपरपोजिशन हमारा आधा ही हुआ यहाँ पे। हमने देखा कि Vy जब जीरो कर दिया ये वाला हो गया। अब Vx जीरो करेंगे तो कैसे दिखेगा? इसको मैं जीरो कर दूंगा अब, ठीक है ना? तो सेम यहाँ Vy, ये नॉन इन्वर्टिंग को लगा है, यहाँ R4, यहाँ R5 और यहाँ Va आएगा। बस इसको मैं थोड़ा सा पर या फ्लिप करता हूँ और यही डायग्राम मेरे को दोबारा बनाना पड़ेगा। कौन सा? सेम ये वाला। देखो मैं इक्विवेलेंट डायग्राम बना रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ पे Vx की जगह Vy रहेगा और यहाँ पे Va रहेगा और आउटपुट जब भी Vb था, अभी जब भी आउटपुट Va था, अभी आउटपुट Vb है। ये समझ में आया कि जरा देखो तो इसके साथ में एनालाइज करो। यहाँ देखो फीडबैक में रजिस्टर कितना है? इसके फीडबैक में रजिस्टर कितना है? हेलो, ये R4। नीचे में R4 और उसके ऊपर जो दोनों रजिस्टर है वो कौन से होंगे? एक R5 और ये R4 जो VA को लगा है। R5 और R4 जो VA को लगा है, ये दिख रहा है अब अभी सेम हो गया। तो ये इक्विवेलेंटली सेम दिखेगा। आप देख रहे होगे ये जो मैंने डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनाया ना, ये सिमेट्रिकल है। अगर आप देखेंगे ये, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं यहाँ पे, तो इसके इसमें ये सिमेट्रिकल है, ऊपर भी और नीचे भी बराबर है। ये RF इसके साथ में मैच हो रहा है, ये R1 इसके साथ में मैच हो रहा है, ये R4 इसके साथ में, और ये जो बीच वाला R5 है ये कॉमनली हम लोग शेयर कर रहे हैं। ये R5 जो है बीच वाला, वो कॉमनली शेयर कर रहे हैं, इसलिए इक्विवेलेंटली सेम दिखेगा। सो अगेन क्या करना पड़ेगा फिर हमको? लॉजिक वही है, बाय SPT। अभी हमको क्या निकालना है? जब भी VA निकाले थे, अभी क्या निकालना है? VB। सेम क्या बोलेंगे कि VO ड्यू टू Y और VO ड्यू टू A। देख रहे हैं आप, इसके साथ में ये B के साथ में था, ये A के साथ में। चल रहे ना? ठीक चल रहे ना अपन? यस सर। बस अब धीरे से इसको एनालाइज करते हैं कि VO ड्यू टू Y तो नॉन इन्वर्टिंग होगा कि इन्वर्टिंग होगा? नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग। तो डायरेक्टली फार्मूला लगाएंगे 1 प्लस RF अपॉन R1, ठीक है? RF में कितना है? R4 और R1 में कितना है? R। ठीक है ना, बराबर? इंटू VY। हाँ, अब VOA, अब VY जीरो कर दिया तो इन्वर्टिंग हो गया कि नॉन इन्वर्टिंग हो गया? इन्वर्टिंग। बिल्कुल इन्वर्टिंग। तो फीडबैक में कितना है? माइनस RF अपॉन R1। यस, वेरी गुड, बराबर। तो यहाँ पे R4 और R5 ना लिखा है, इसलिए उसके हिसाब से ले रहे। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसी के जैसे मैं रख दूंगा यार। इसको लिख दिया सेम ट्वाइस R4 प्लस R5 ऑन R4 प्लस R5 VY माइनस R4 अपॉन R4 प्लस R5 इंटू VA। अब आप जरा ध्यान दो, इसको नंबर 2 देता हूँ। 1 और 2 को ऑब्जर्व करो, 1 और 2 को ऑब्जर्व करो। कैसे दिख रहा है? यहाँ VA इक्वल टू लिखा है सम फंक्शन ऑफ VX और ये VB। यहाँ VB इक्वल टू लिखा है VY और VA, लिखा है ना? अब आउटपुट कैसे निकालेंगे हम लोग? आउटपुट का याद आ रहा है कि आपको? देखो क्या लिखा था हमने, ये देखो आउटपुट प्लस, ठीक है ना? क्या लिखा था? VO इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन R1 VA माइनस VB। ये याद आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। हाँ, बस अब यही हम करने वाले हैं और वो दोनों वैल्यू जहाँ के वहां रख देंगे। क्या है? VO इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन R1 VA माइनस VB। VA की वैल्यू मैं 1 से ले रहा हूँ और VB की वैल्यू 2 से ले रहा हूँ, बस ये वैल्यू रख रहा हूँ मैं, ठीक है? तो आप देख रहे क्या कि इसमें ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कॉमन है ना? हेलो? यस सर। और इसमें ये टर्म और ये टर्म कॉमन है ना? कॉमन। तो मैं वही चीजें ले रहा हूँ और यहाँ पे माइनस RF अपॉन R1 ये बड़े ब्रैकेट में VA माइनस VB यानी
2, ठीक है। तो मैंने यहाँ से निकाल लिया 2r4 प्लस r5 अपॉन r4 प्लस r5, ये कॉमन निकाल लिया तो मुझे यहाँ से मिल जाता है vx माइनस vy, और ऊपर वाले से मैंने कॉमन निकाल लिया प्लस r4 अपॉन r4 प्लस r5। तो ये माइनस वैल्यू है माइनस वीबी, और ये माइनस होके प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ वी ए माइनस वीबी। ये चलेगा क्या आप लोगों को कि दौड़ेगा? थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है। ये माइनस आर एफ अपॉन R1 लिखने के बाद मैंने क्या किया, पहला टर्म माइनस दूसरा टर्म, तो 2r4 प्लस r5 अपॉन r4 प्लस r5 कॉमन निकाला तो vx माइनस vy, प्लस ये r4 प्लस r5 कॉमन निकाला तो माइनस vb माइनस माइनस va, तो माइनस माइनस va यानी प्लस va, और va माइनस vb। सो विल इट डू? ये चलेगा आप लोगों को कि नहीं चलेगा? दौड़ेगा। देखो जरा, दौड़ेगा। आपको थोड़ा थोड़ा तो दौड़ाना ही पड़ेगा ना आप लोगों को, है ना, थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा ना। तो vo मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो मुझे आ गया ये सिंपल सा रिलेशन, इसको vab लिख सकता हूँ डायरेक्टली। अच्छा, अब माइनस आर एफ अपॉन R1, यहाँ पे एक थोड़ा सा कैसे है, ये vx माइनस vy डायरेक्ट पहले लिख ही देता हूँ, 2r4 प्लस r5 अपॉन r4 प्लस r5। इसको अब मैं डायरेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ vx y, और इसको भी डिफरेंशियल फॉर्म में लिख देता हूँ r4 अपॉन r4। अब ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसको समझ लो। ये माइनस अपन माइनस आर एफ अपन R1 ये दोनों के लिए कॉमन है ना, ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जानबूझ के, और यहाँ पे बचा है r4 अपॉन r4 प्लस r5 इंटू va माइनस vb, यानी vab लिख सकता हूँ। अब जरा ये वाला रिलेशन जरा याद करो, क्या है, माइनस आर एफ अपन R1 vab। ये माइनस आर एफ अपन R1 vab क्या है? vo है ना, माइनस आर एफ अपन। बस यही चीज यहाँ पे रख सकता हूँ क्या, आप मेरे को बताना। ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, बस इसी को रिप्लेस कर रहा हूँ। आपको चलता है कि नहीं चलता है, आपको देखना पड़ेगा कि vo इक्वल्स टू माइनस आर एफ अपॉन R1 2r4 प्लस r5 अपॉन r5 इंटू vxy माइनस ये माइनस आर एफ अपॉन R1, ठीक है, इंटू vab, ये हमारा हो रहा था vo, बराबर है। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ, माइनस भी थी वैल्यू, हाँ माइनस भी है, तो इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं माइनस आर एफ अपॉन R1, यानी ये r4 प्लस r5 जैसे के वैसे, और ये जो टर्म है इसको नाम दे दिया मैंने vo। ये चलेगा क्या, देखो जरा, अभी ठीक है क्या? ये माइनस आर एफ अपॉन R1 इंटू vab इज नथिंग बट vo। ये ठीक है ना, चलेगा ना? यस सर। ये आपके ध्यान में आ रहा है ये सब क्यों कर रहा हूं मैं? मुझे चाहिए आउटपुट वोल्टेज रिलेटेड विथ vxy। अब यहाँ vab टर्म ये मेरे क्या थे, इंटरमीडिएट मेरे एजम्पशंस थे कि ये यहाँ पे वोल्टेज va है और यहाँ पे ये इंटरमीडिएट वाला वोल्टेज नहीं चाहिए मुझे, एकदम आउटसाइड में आउटपुट और एकदम इनपुट यानी लेफ्ट साइड में इनपुट। इन बिटवीन क्या क्या गेन हो रहा है, क्या क्या एम्पलीफाई हो रहा है, वो नहीं चाहिए मुझे। गेन निकालना है तो डायरेक्टली लास्ट आउटपुट और फर्स्ट इनपुट। तो अब ये vo को मैं एक तरफ कर लेता हूं, चलेगा? ये vo मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पे 1 है, माइनस ये वाला जो va इधर शिफ्ट किया तो ये r4 अपॉन r4 प्लस r5। ये देख लो एक बार, इतना, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यस सर, बराबर है ना? ये बस ये vo को मैंने ट्रांसफर कर दिया, और इधर जैसे के वैसे माइनस आर एफ अपॉन R1 ट्वाइस r4 प्लस r5 अपॉन r4 प्लस r5 टू vxy। अब vo एक टर्म हो गया और vx एक टर्म हो गया, तो हम गेन निकाल सकते हैं, पर पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये ऊपर गया r प्लस पर r5 माइनस r4, तो ये बच जाएंगे सिर्फ r5। यहाँ तक ठीक है क्या, देखो जरा। यस सर, ठीक है। अब हम गेन निकाल सकते हैं कि इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन क्या होगा। हमारा गेन क्या होगा, समझो डिफरेंशियल गेन AD इज इक्वल टू VO बाई VXY। तो ये VO टर्म है और ये VXY टर्म है, तो अब सिर्फ मैनिपुलेशन है, इसको उधर से उधर भेजना है।
सिर्फ इसको लिखते वक्त क्या कर रहा हूं मैं, पहले ये कर लेते, यह 2r4 प्लस r5 है, इसको मैंने ऊपर भेज दिया तो मुझे मिल जाएगा माइनस rf अपॉन r1 जैसे के वैसे, ये टर्म जैसे के वैसे लिख रहा हूँ, 2r4 प्लस r5 अपॉन r4 प्लस r5, और ये वाला टर्म क्रॉस चले जाएगा तो r4 प्लस r5 अपॉन r5 चलेगा, ये ठीक है। यस सर। यस सर। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो अब मैं यह लिखूंगा AD इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन R1। अब ये R5 नीचे रह गया, ये 2r4 और ये R5, तो जरा जानबूझ के इसकी लैंग्वेज में ये R5 से R5 को डिवाइड किया तो 1 हो गया, और 2r4 को डिवाइड किया तो 2r4 अपॉन r5, ये जो हो गया ये हमारा गेन, ये गेन का हो गया, ठीक है ना, ये रिलेशन हमने डिराइव किया। अब जरा इसको ऑब्जर्व करो तो आपको क्या लगता है, देखो ये डिराइव किया हमने, देख रहे कि गेन सिंप्लीफाइड आ रहा है, आउटपुट वोल्टेज ये डिफरेंशियल इनपुट को एम्पलीफाई कर रहा है VXY को, और उसका गेन है RF अपॉन R1 1 प्लस 2r4 I5। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है इसका कि इसका गेन जो है ये बहुत सारे रजिस्टर पे डिपेंड कर रहा है, R4 पे है, R5 पे है, RF पे है और R1 पे है, ठीक है। लेकिन हम कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं, लेकिन हमको पता चल रहा है कि आपने देखा होगा वेरिएबल क्या रखा था हमने, R5 यानी कि RG, इसी को कोई RG टर्म रहा तो R5 की जगह RG आ जाएगा। अब हम ये सब चीजें क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या था, इनपुट इंपीडेंस विद फीडबैक का। तो जरा आप इनपुट इंपीडेंस पे ध्यान देते, इनपुट इंपीडेंस कितना रहेगा हमको RIF देखना है, तो जरा ऑब्जर्व करो, एक इनपुट इंपीडेंस रहेगा जब थ्रू हम VX देख रहे हैं, यहां से दिखेगा, बराबर है। अब देखो ये दोनों सिमेट्रिक पार्ट है, नॉन इन्वर्टिंग आ रहा है, पहला वाला नॉन इन्वर्टिंग यानी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को है, दूसरा वाला भी जरा ऑब्जर्व करो, VY के थ्रू अगर देखे तो वो भी नॉन इन्वर्टिंग है कि नहीं। तो इसका एडवांटेज ये है कि इसका इनपुट इंपीडेंस दोनों साइड में इक्वल है, गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। कि इसका इनपुट इंपीडेंस दोनों साइड से इक्वल है, जबकि डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूजिंग वन ऑप एम्प में भी प्रॉब्लम था कि अलग अलग आ रहा था, टू ऑप एम्प में भी प्रॉब्लम आ रहा था, अलग अलग है, लेकिन इसमें हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि ये सिमेट्रिक होने की वजह से दोनों साइड से सेम इनपुट मिलता है, इसीलिए सबसे ज्यादा प्रेफरेबल होने वाली ये चीज है, ठीक है ना। RIFX इज इक्वल टू RIFY, ये भी लिख सकते हैं आप चाहे, एंड दैट्स व्हाई इट इज प्रेफरेबल, ये सबसे ज्यादा प्रेफर किया हुआ डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। अब इसी का एक स्पेशल केस होता है, क्या केस होता है स्पेशल केस, कि पहले वाला जो है डायग्राम उसी का अगर हम R4 जीरो कर दे तो क्या होगा, स्पेशल केस तैयार हो जाता है उसी में से। एक मिनट में डायग्राम, गेन आएगा, नहीं पहले वाला स्टेज क्या हो जाएगा वो देखो, सिर्फ वो ऑब्जर्व, माइनस RF पर R1 आएगा, हाँ गेन सिंप्लीफाइड हो जाएगा, और डायग्राम में क्या सिंप्लीफिकेशन आएगा, आ रहा है कि कुछ ध्यान सर डायग्राम दिखाना ऊपर। और एक सेकंड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एक मिनट डायग्राम देखो, हाँ अब R4 जीरो कर दे रहा हूँ मैं, एक स्पेशल केस बनेगा उसमें से। आप लोग वैसा वाला सर्किट पढ़ चुके हैं जिसमें R4 जीरो होता है, वोल्टेज फॉलोवर सर्किट। हाँ बराबर कि दोनों इनपुट साइड, और मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे केसेस में जब भी सेंसर या ट्रांजिस्टर लगता है तो उसकी पहले स्टेज जानबूझ के बफर लगाते हैं, तो ये उसका स्पेशल नमूना है, बोल सकते हैं आप, स्पेशल केस है। हाँ ये देखो उसी का जो स्पेशल केस बोल रहा था, जो आप डायग्राम ये देख रहे हैं, क्या हो गया, ये बफर बन गया, ठीक है, ये बफर बन गया, ये आपका RF है, ये R3 इक्वल टू RF है, और ये भी R1 है। अब आप बता सकते हैं कि डायरेक्टली इसका गेन कितना होगा, AD इज इक्वल टू VO अपॉन VXY इज इक्वल टू डायरेक्ट माइनस RF अपॉन R1। ये बहुत ज्यादा नॉर्मली यूज करते हैं, क्योंकि क्या है देखो आप आपके इसमें ये R4 जीरो हो गया, ये जीरो हो गया तो ये टर्म चले गया, ठीक है ना, तो ये सिंपल बन गया, कितना बन गया, माइनस RF अपॉन R1। सो इट इज मोस्टली प्रेफर्ड। अब मेरे ख्याल से समय खत्म हो रहा है, नहीं तो मुझे इंस्ट्रूमेंटेशन यूजिंग ट्रांसड्यूसर ब्रिज लेना था, तो हम लोग वो नेक्स्ट टाइम ले लेंगे।